अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज जुमा का दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैसूर शहर का मशहूर व मारूफ इलाका जिसे केसरे कहा जाता है, केसरे वार्ड नंबर 9 में जो है नौजवानों की जानिब से खुसूसन फिजा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएटेड ABS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से जो है यहाँ पर एक दफ्तर का बड़े आला पैमाने पर इफ्तिताह हुआ है। इस मौके पर MLA हरीश गौड़ा साहब यहाँ पर मौजूद रहे और जनाब ABS अब्बास साहब और उनके भाई उमर साहब और भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर मौजूद रहे। तो आइए जानते हैं यहाँ पर इस दफ्तर का खोलने का क्या मकसद है, यहाँ पर ये दफ्तर से क्या फायदा होगा अवाम को, ये जानने की कोशिश करेंगे।
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕೆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಜಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಫರಾನ್ ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ABS ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸನ್ನು ಸೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲೇಔಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಸೂರಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಸೂರು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಲಿ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಫರಾಜ್ ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬೈನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಮರ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರು ನಗರ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೋದರು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಬೈ ಅವರು ನನಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರು, ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮತ್ತು ಜಾಕೀರ್ ಅಣ್ಣವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಾವು ಮತ್ತು ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕೋರ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि बहुत सालों के बाद ये एरिया पर आया हूँ, तो ये एरिया पे सब जो डेवलपमेंट जो करे अल्लाह ताला इनका कामयाब करेंगे. और ABS ग्रुप साथ में है. ABS ग्रुप तो आज मैसूर के अंदर फेमस है, तो उसका वास्ते है जो उनको और भी ताकत है चौधरी को देखो ये एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना और यूथ को नौजवानों को एक एनकरेज देना, तो बिजनेस का लग जाना. तो बिजनेस लेन जो जाता है तो तब पूरा चीज़ सब कम होता है. उसका वास्ते फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस को जाना. तो बिजनेस का तरीका ऐसा डेवलपमेंट को एक दिन बैकग्राउंड दिया तो उनको कामयाब का जरिया होता है. ABS ग्रुप का और फिजा ग्रुप का डेवलपमेंट को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಮರ್ ಅವರು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಜಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇತರೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಉಮರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಉತ್ತೇಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಲ್ಲದೇನೆ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಅವ್ರು ಏನು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಂಚುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 100% ಜಿನ್ಯಾನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಜಿನಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೂರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಒಂದು 10% 20% ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬಹಳ ಬಡವರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10-20% ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಸೈಯದ್ ಅಬ್ರಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕಂತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಫಿಜಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ರಮ್, ಒಂದು ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡು. ಅವ್ರ ಮಗ ಉಮರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫರಾಜ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಫಿಜಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಮಾನ್ಯ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಇವ್ರುಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ. ಇವರ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಸೇರಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. जनाब ABS अब्बास साहब आज मैसूर शहर के वार्ड नंबर 9 केसरे में फिजा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएटेड विद ABS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से जो है एक दफ्तर का आला पैमाने पर इफ्तिताह हुआ, जिसमें बहुत सारे अलग अलग सियासी हालात मौजूद रहे. उस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं अपने दिल की गहराइयों से फराज और उमर को फिजा डेवलपर्स एंड लैंड डेवलपर्स के जो ऑफिस आज इब्तदा हुई, इसके वास्ते मैं परखुलूस मुबारकबाद देता हूँ. और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इनसे उम्मीद करता हूँ कि साफ सीधे लैंड का ख़रीदारी कर अच्छे मुनासिब दामों में गौर गरीबां की मदद हुए जैसा अच्छे पैमाने पर बिज़नेस करेंगे को मेरी इनके वास्ते दुआ रहती है. और इंशाल्लाह ये सब कामों में मेरा इनके साथ कोऑपरेशन होता है, हमारी ग्रुप का. वार्ड नंबर 9 केसरे में ही क्यों इफ्तिताह हुई है सर? मतलब ये ऑफिस यहाँ पर ही क्यों है? अब इनके थ्रू मेरे पास कई जगहें इन्होंने ख़रीद कर जो है डेवलप कर रही. जैसा कि आप देख सकती हैं बेंचमार्क के आसपास में और दूसरे भी केसरे के इलाके में जो छोटे जो जगहें हैं ये हैं. अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे लायक कुछ है तो मुझे सुनाती, तो मैं इनके बिहाफ में ख़रीद कर मैं इनको देता हूँ. तो ये सिलसिले में इंशाल्लाह मेरा इनके साथ हमेशा कोऑपरेशन रहता है. हम ना समझ में जैसे चीज़ें कोई भी आए तो, और इंशाल्लाह ये ऑफिस में हमारा रोज़ाना विज़िट रहती है. क्या भी एक कारोबार बिज़नेस के ताल्लुक़ से कुछ भी क्या भी एक डिस्कशन रहा या कुछ भी एक नतीजे पर आना तो इंशाल्लाह मैं इनके साथ कोऑपरेट करूँ. और दूसरे रियल एस्टेट पर वर्क क्या है सर? ये सब कामन ही चाहिए. जैसा कि आप देख रही मेरे जगह में गलत डॉक्यूमेंट्स ये बहुत से मामले थी आपके सामने तो ही.
वो गिनते गए तो आप देखिए जैसा खुसूसन जो हमारे कौम के इलाके हैं वो जगह में बहुत से गलत चीज़ें हो रही। अब इनके सोच क्या है तो एक दो तीन चीज़ों में ऐसा इन्वॉल्व हो को गलत चीज़ों को सही कर बिकाए। मैं देखे जैसा गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट्स लिए कलेक्ट करे किसकी जगह क्या किधर देखे, वो पैमाने पर क्या करे वो जो गौर गरीबान ले को ख़रीद को जो मजलूमान थे उनके साथ सही इंसाफ करे। वो सब चीज़ों में देखा उसमें कहा कि हमारा भी एक कॉपरेशन था इनके साथ। मैं ये ऑफिस का मेन मकसद बनाई से ये करने का तो इनकी ग्रुप में ऑलमोस्ट एक 50-60 मेंबर हैं। मैं सबके साथ मेरे साथ मीटिंग करे, मैं बोले तुम्हारा कॉपरेशन हमारे साथ रहा तो इंशाल्लाह ऐसे गैर गलत चीज़ें कहती रहे तो भी जगह में जैसा कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होती कितने दिन मालूम नहीं रहते क्या डॉक्यूमेंट्स था कौन की क्या की गलत बना को दे डालती, वैसे चीज़ों की सही कर को उनका हक़ उनको दिला रही। तो उनके हक़ दिलाने में मेरा इनके साथ कॉपरेशन था। आम आवाम को इससे क्या ज़्यादा फायदा होगा इसको करके जो उम्मीद लगाए बैठे हैं अभी तक उनको क्या उम्मीद दे सकते हैं? अब पूरे मैसूर का तो बता नहीं सकते, मैं कम से कम मेरी इनको नसीहत क्या करो बोला तो जितना तुम्हारे आसपास है उसे सही करो। ऐसा तुम ना देख कर दूसरे भी इंस्पायर हो को उनके एरिया में भी गलत होते रहा तो क्या भी नहीं लीगल वे से जाना, इसको क्या भी ज़ोर ज़बरदस्ती या कंपटीशन या क्या भी शोर शराबा गैर गलाटा पंचायत ऐसा क्या भी नहीं रहना। कानूनी एतबार से जाकर डॉक्यूमेंटेशन देख कर और कंसल्ट जो डिपार्टमेंट्स होती उनको रब्ता कर को जिनके साथ गलत हुआ है उनको गाइड करेंगे। ये नहीं कि ऐसा कर को बोल को खुद इनो रंदे या दूसरे को उनके रंदे ये करेंगे। मालूमात है इस वाले क्या फ़र्ज़ बनता है अब ये जगह के बारे में किसी की मालूमात है रियल एस्टेट के बारे में तो उन्होंने दूसरे को मालूम कराना क्या चीज़ कैसी क्या लिए तो कैसा। अगर प्रॉपर्टी ख़रीदना तो अब मूडा के प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है जो मूडा अप्रूव्ड रहती हैं, जो कॉरपोरेशन अप्रूव्ड रहती हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहती हैं उसमें लीगल एडवाइस ले लेती है। एक लॉयर को एक मिनिमम फीस रहती है उसके तहत ले लेती है। रेवेन्यू में क्या होता है अक्सर इसमें इंटरेस्ट नहीं रहते जैसा कि इनकम्पेंस रहता है ईसी खाते सब नहीं रहते तो उसमें कौन की लेकर रहता है कौन की बेच को रहता है उसमें ज़रा चीज़ आती है उसे डीप जाना। रेवेन्यू में जो है जितना सिंपल बिजनेस करने में है मामला तो टच डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने में बहुत डिफ़िकल्टी थी उसे मालूमात इनको अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको सब मालूमात है ये बारे में। अक्सर इधर चीज़ें इन्हों करी तो मैं समझती हूँ इनको अच्छी मालूमात है। वैसे चीज़ें इनके ऑफिस में आए तो इन्हों देख को कानूनी से उसके कानून के थ्रू उनको सही इंसाफ दिला को कानून जो कंसल्ट डिपार्टमेंट रहती है जैसा कॉरपोरेशन रहता है मूडा रहता है उनको अप्रोच करके गलत हुआ रहा तो गलत दिखा उनके थ्रू जो एक्शन लेना है गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू एक्शन लेना जैसा पुलिस स्टेशन में उनको ऐसा नहीं कि कहती भी रहा तो हमें खुद ये करते राय दे सकती हैं एडवाइस दे सकती हैं बाकी जो कारगुजारी रहती है वो डिपार्टमेंट करती है। जिस तरह यहाँ पे हुआ है दूसरे इलाकों में अगर नौजवान इन्हीं की तरह सलाहियत लेकर आपके पास आएंगे तो क्या आप उन्हीं को मैं वो वास्ते इंशाल्लाह 24/7 में इनकी खिदमत में हाजिर हूँ इंशाल्लाह। सर इन क्षेत्र में एक और बात भी आई है आवाम के दरमियान में लैंड माफिया बोलकर सवाल उठते हैं किसी भी चीज़ को लेकर लैंड माफिया इसको जो है लैंड माफिया दूर किस तरह किया जाता है आवाम की जहनों से। लैंड माफिया को अब तफसील में गए तो जो इलीगल तरीके से लैंड की डील करती है उनको लैंड माफिया बोलते हैं। इलीगल तरीके से जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहता है जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट रहता है उसके तहत जो बिज़नेस करती है उसे लैंड माफिया बोलते हैं। लीगल वे में अच्छे पैमाने पर बिज़नेस करे जाए। हमारे बड़े बड़के की उन्वानों में रिवायत में भी है सही तरीके से ज़रा स्लो रहती तरक्की आड़े तिड़े चीज़ों से फास्ट मिलती है को ये जो तरक्की स्लो तरीके से जो होती है वो हमेशा हमेशा वैसे तय रहती है। जो आड़े तिड़े तरीके से तरक्की होती वो बहुत जल्दी ख़त्म भी होती हैं। आप देख के बहुत से मिसाल ही रिक्वेस्ट क्या करो बोले तो कौन की क्या की बेयर करने वाला रहता है लॉस। अब बिजनेस में जैसा प्रॉफिट लॉस का मसला रहता है जिन्हें बेयर कर सकता लॉस से वैसे का एक जरा सामने पीछे बात करवानी। इसमें अक्सर या रेवेन्यू चीज़ा में क्या रहता है गौर गरीमा मजलूमा इनो रहती से उनको उनके जो उनकी मेहनत का उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी को काट को ज़रा ज़रा को जमा को सब ला कर देखो रहती उनको सही तरीके से उनको नॉलेज देकर सही चीज़ दिलाना उनकी कैपेसिटी के तहत तो इसका अजर यहाँ भी मिलता है इंशाल्लाह शहर में भी इंशाल्लाह इसका अजर मिलता है। आखिरी सवाल
पिज़्ज़ा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में जो है यकीन कर यहाँ पर पूरे एतमाद के साथ अगर आपको पैसे देकर ज़मीन ले सकती है, 100% गारंटी। ये गारंटी का मसला जो है आपको जैसा मालूम होना चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज लेना। मेरी प्रॉपर्टी रही तो मैं मेरी अच्छी प्रॉपर्टी करूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी बात नहीं बता रहा हूँ, जनरल। तो आदमी भी क्या करना, एक से फर्स्ट ओपिनियन सेकेंड ओपिनियन करती, इसके ताल्लुक से रियल स्टेट के एक्सपर्ट लायर्स रहती, उनको जाकर रब्ता करना। कोई भी अपनी चीज़, मैं मेरी खुद की चीज़ बेच लूँगा तो बोले तो मैं मेरी चीज़ सही है गलत है, मैं जो दे रहा हूँ वो लायर ही बता सकता था। अब हमारे रिलेशनशिप में कौन हमारे ऊपर भरोसा करे तो हमें उनके भरोसे को तोड़ने नहीं देना, उनके वास्ते सही कर को देना। और मैं जो आप सवाल उठाए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सवाल उठाए। मैं इसके ताल्लुक से एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं गरीब आवाम रहंदे या कोई भी मिडिल क्लास के रहंदे या बड़े रहंदे, सस्ते के चक्कर में गफलत में आकर सामने बेचने वाले का अहदा पोजीशन देखकर मैं खुद रहते भी जगह को भरोसा करो न को, डॉक्यूमेंट्स लो, डॉक्यूमेंट्स को डीप जाओ। एक ओपिनियन के बजाय रेवेन्यू के बारे में तो मैं राय ये देता हूँ, एक ओपिनियन के बजाय दो ओपिनियन लो। सेकेंड ओपिनियन भी उसमें कौन सी बेहतर रहती है, क्या डॉक्यूमेंट्स कम रहती हैं, वो मुकम्मल हुए तक खरीदो ना। कोई भी ऑफिस अंदर ऐसा है, हमारे चाहने वाले हैं बहुत ऑफिस आई, ये हमें खुसूसी ऑफिस की रखेंगे और बोले तो हम ख्यालात ग्रुप है हमारे भाइयाँ जो ही ऑफिस खोली, मेरी जो सोच है वैसी सोच रखने वाले। क्या भी चीज़ को डीप जाना, डॉक्यूमेंट्स में क्या थी भी कम सरस रहा तो कंसल्ट डिपार्टमेंट में जाको उसका रब्ता करको, उसका सही डॉक्यूमेंट कलेक्ट करको, उसे अच्छी फाइल बना को सही तरीके से सेल करो को मेरी इनके वास्ते राय। तो आवाम से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सस्ते के चक्कर में मुसीबत में जाओ ना को। हमारे मेहनत का पैसा एक बार वहाँ चलेगा तो मैं अब मेरा पोजीशन बढ़ा, मैं जब खुद खुशी के अहदे ही ऐसा देख को मंजन हुआ लेना सो प्रॉपर्टी तुम्हें, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देख को लेना सो मेरी एक आवाम से रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। खरीदने वालों को जिसके पास ताकत है वो आप बिल्कुल सही मशवरा दे रहे हैं सर। कई लोग ऐसे हैं जो किस्तों में उम्मीद लगा बैठेंगे, अगर हम थोड़ी अमाउंट में किस्तों पर अगर कुछ सहूलत मिले तो ऐसा कुछ है सर यहाँ पर। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पिज़्ज़ा डेवलपर जो ही बहुत से लैंडर लेकर आकर ही, अब हमारे पास एक ऑलमोस्ट एक 10-12 प्रपोजल्स ही, अगर वो मुझे सही दिखा तो मैं इस पर इन्वेस्ट करता हूँ। मैं इन्वेस्ट कराया तो इंशाल्लाह नो प्रॉफिट नो लॉस में मेरे तरफ से जो रहता है मैं इनको तो इनको भी मेरी एक राय रहती है, इंशाल्लाह इन्हों भी मिनिमम कीमत में लेकर कम मुनाफा रखो और गरीबान के वास्ते ये ऐसी एक स्कीम लाने आने वाले दिनों में मैं इनके साथ कोऑपरेट करूँगा। जी फराज साहब, आप ही का मोहल्ला, आप ही की वार्ड में जो है आप ये दफ्तर इफ्तिताह कर रहे हैं, बड़े आला पैमाने पर बहुत बड़े बड़े सियासतदान सब आए थे, इस ताल्लुक से क्या बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये ऑफिस केसरे में हमें ओपन कर को ही पहले तो अल्लाह, बाद में अब्बास भैया, जितने भी इधर आको ही सबका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। आपका मकसद क्या है दफ्तर खोलने का? अच्छा एक बिजनेस करेंगे अगर को, ऐसा अब्बास भाई एक नसीहत करे, ऐसे वैसे इसमें जौना को बिजनेस करो, बिजनेस लाइन में होकर को बोले वो हिसाब से ओपन करे। तो ऑफिस का टाइमिंग बता दीजिए। 9 बजे से लेकर 8 बजे तक भी ओपन रहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी हुई ये प्लेटफॉर्म हमने मिला ना बोल को कि तो मैं भी ये चेहरे में पैदा होगा बड़ा को हूँ। बहुत सारे चीज़ें देख ले कहीं मैं लैंड माफिया क्या किधर को बोल को अक्सर बहुत सारे लोग क्या करती बोले तो कारपोरेशन की ज़मीन भी छोड़ते नहीं, सरकारी मुड़गोल की भी ज़मीन छोड़ते नहीं, मालूम नहीं होता उन्होंने भी क्या करो क्या है कर डालती हैं। आवाम जो क्या है ब्राह्मण को कुली मजदूरी कर को क्या करते हैं, एक घर तामीर के वास्ते जो है एक बैठा पैसा इकट्ठा कर ले आको देती है। जब सामने वाले को जब मालूम मार बोले तो बहुत सारी नया दी उठता। ये हमारी ऑफिस से जो है हमारी प्लेटफॉर्म से जो है चीज़ नहीं होना, जो भी हो बहुत सारे चीज़ें मैं देखो यहाँ बस भाई के सामने अक्सर जो है केसरे के अंदर कौन भी जो है आरटीसी उनके नाम पर बैठा को ज़मीन बेचने वाले जो है बहुत कम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बास भी को जो है मैं देखा यहाँ की हमारी वार्ड नंबर 9 के अंदर उनके नाम पर आरटीसी बैठा को जो है आरटीसी ओनर हो को जो है सेल करें सब लोग उन्हें फर्स्ट बहुत खुशी होते हैं। और जो है कौन भी रंदे जो है आरटीसी जो तहत जो है काम करे बोले तो उन लोग खसारे में नहीं होता। लाखों के रुपए जो है ज़मीना को दलालती हैं, लेकिन जो है पेपर वर्क के अंदर देखने में क्या है हमारे अवाम जो है फेलूर रहते हैं और जुआ खेलने में लग जाते हैं। कहाँ की 12 लाख का तो कौन की 8 लाख को देंगे तो फैले जाको क्या करते लेने में चले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना, कौन भी रंदे 2 नहीं तो 5,000 नहीं 10,000 रुपये होंगे, सही लायर को पकड़ना
लीगल जो है लीगल के तहत जो है ज़मीन खरीदना, अगर वो भी नहीं हो रहा है बोले तो जिसके ऊपर भरोसा है उनको जो है पूछ को जो है आगे बढ़े और बोले तो ये बहुत ये होता। तो हमारा प्लेटफॉर्म भी ये चाह जा रही है, कौन भी आंदे जो सही है लीगल तरीके से अगर रहा तो हमें ज़मीन को हाथ डालती, अगर इलीगल रहा तो वो चीज़ को जो है हमारे हाफिज से अब्बास भाई भी जो है वो लाइन में नहीं, और उनके हमें ताबे रखो जो है हमें सीखे लीगल क्या इलीगल क्या ये सब चीज़ें जो है हमने दिखाने में वाले जो है अब्बास भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अब्बास भी का। तो तमाम आए हुए भाइयों का भी जो है दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। जी मोहतरम, आज कैसरे के अंदर जो है फिजा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की दफ्तर का इफ्तिताह हुआ, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहते हैं इस तरह से? मैं भी वन ऑफ द मेंबर हूँ फिजा डेवलपर्स का, और मेरा एसोसिएशन अब्बास भाई के साथ बहुत सालान से है, 30-35 साल से मैं बचपन के दोस्ता हैं। जो फिजा डेवलपर्स में जो भी इन्वेस्ट करती है, मेरी अपील है इट इज़ वेरी सेफ, और हमारी लीगल टीम है कि जितना भी लाइजनिंग वर्क है लीगल ओपिनियन होना, पूरा हमारे लायर साहब हैं इन मोहन कर को, उनकी एक टीम है, टेक्निकल टीम है लाइजनिंग को हमारी, और खाते से लेकर टिल्ड पूरा हमेज कर को देती। जो कस्टमर लिया हमारे पास से हमें फाइनल खाते तक भी उनका प्लान भी सैंक्शन करा को देती, बिल्डिंग बनना वो हमें स्टेज को ला को देती। किसी किस्म का कोई भी नहीं कोई नहीं मसला नहीं पेश आता। और जैसे आवाज भी बोले डबल ओपिनियन लेना, हमारे पास एक ओपिनियन है, बाहर भी एक ओपिनियन ले सकती है, जो भी कस्टमर खरीदती इत्मीनान के साथ कदम बढ़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया।